नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। बीआरएस के केटीआर का बड़ा खुलासा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जल्द भाजपा में होंगे शामिल। हुसैन सागर झील के जल स्तर में वृद्धि, जीएसएमसी अधिकारियों ने शुरू की करीबी निगरानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अपील, गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों को विकास में शामिल करने की आवश्यकता। विनेश फोगाट के भारत लौटने पर भव्य स्वागत, पति सोमवीर राटे का बड़ा बयान। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र और झारखंड पर अभी तक कोई घोषणा नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों और छात्रों की हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने बताया कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक विकासशील राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के हालिया यात्राओं के दौरान हैदराबाद 4.0 परियोजना पर निवेशकों से चर्चा की गई। इन यात्राओं में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 30,000 रोजगार के अवसरों के लिए 25 MOU पर हस्ताक्षर किया गया। श्रीधर बाबू ने कहा कि इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के कांग्रेस सरकार की नीतियों को प्रमोट करना है। उन्होंने IT, फार्मा, डेटा सेंटर, EV और बैटरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये भी घोषणा की गई कि अमेज़न जल्द ही राज्य के बड़े पैमाने पर निवेश करने का सोच रही है। तेलंगाना రాష్ట్రం రాబోయే కాలంలో ఒక ఫ్యూచర్ స్టేట్ గా ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాం. హైదరాబాద్ 4.0 విజన్, మా విజన్ ని అక్కడ ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలతో వాణిజ్య సంస్థలతో పంచుకున్నాం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మా ఫ్యూచర్ సిటీ, AI సిటీ, మూసీ రీజనరేషన్ ప్రాజెక్టు, ఈ ప్రధాన ప్రాజెక్టులకు తోడ్పాటు అందించడానికి, కలిసి పనిచేయడానికి చాలా మంది కూడా ముందుకు రావటం జరిగింది. అదేవిధంగా దాంతో పాటు ఈరోజు ITES ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా ఫార్మాకు సంబంధించి, లైఫ్ సైన్సెస్కి సంబంధించి, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించి, డేటా సెంటర్లకు సంబంధించి, గ్రీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ FMCGకి సంబంధించి ఈ తయారు వంటి విభిన్న రంగాల్లో మరి భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి మేము చాలా వరకు కూడా ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో మరి IT రంగాలకు సంబంధించిన ప్రధానమైన ప్రకటనలతో కొన్ని ఒప్పందాలకు సంబంధించి ఈరోజు చార్ల్స్ స్క్వాబ్, ట్రినెట్ సంస్థలకు సంబంధించిన కొత్త GCCలు, గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తామని వారు ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. గ్లోబల్ ITలో ప్రసిద్ధిగాంచిన కాగ్నిజెంట్, అదేవిధంగా RCM విస్తరణ ప్రణాళికలు కానీ, ఈరోజు IT GCC స్పేస్లో హైదరాబాద్ని IT హబ్గా నిలబడే విధంగా వారు ముందుకు రావడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా చూశారు. మేము ఏ విధంగానైతే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము దావోస్కు సంబంధించి అంతర్జాతీయ మీటింగ్స్లో ఇదే కాగ్నిజెంట్కు సంబంధించిన CEO గారిని, వారి కంపెనీ ప్రతినిధులతోని మీరు పెద్ద ఎత్తున ఇంకా మీ GCCని ఎక్స్పాండ్ చేయాలని, తొందరలోనే పనులు మొదలు పెట్టాలని మేము వారిని కోరినాం. ఆ క్రమంలో వారు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఇదే కాగ్నిజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వారు 5 నెలల కాల వ్యయంలో
పెద్ద ఎత్తున వారు ముందుకు నిలబడి మేము ఇచ్చిన మాట మేరకు వారు అడిగినప్పుడు అందించిన సహకారం వల్ల చెప్పిన విధంగానే 5 నెలల కాలహయంలో ఆ జీసీసీ ఎక్స్పాన్షన్కు సంబంధించి కార్యాచరణ తీసుకొని 14 ఆగస్టు జీసీసీ విస్తరణ కూడా చేయటం జరిగింది. ఇది ప్రత్యక్షంగా అందరికి కూడా కనపడ్డాయి. అదేవిధంగా ఫార్మా లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించి 6 డజన్ అమెరికన్ కంపెనీలు తాజా పెట్టుబడులను పొందేందుకు ఒప్పందాలు కూడా చేసుకున్నారు. చాలా వరకు ఈరోజు లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించి ఫార్మాకు సంబంధించి ప్రపంచ స్థాయిలోనే దిగ్గజంగా పేరొందిన ఆమ్జెన్ కంపెనీ, మొట్టమొదటిసారి ఆమ్జెన్ కంపెనీ ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ మొట్టమొదటిసారి కొత్తగా R&D సదుపాయాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని ప్రకటన కూడా చేయటం, మరొకసారి మన ఫార్మాకు లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించి మరొక అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఒక పెద్ద 22nd రోజు AICC has given a call to protest against Adani. ఇక్కడేమో MOUs చేస్తున్నారు. First of all, will local Congress participate in that protest? Secondly, sir, 12,000 crores MOUs చేశారు in Davos. How much has been grounded, or what is the status of those MOUs? No, they are doing their groundwork. Actually, first of all, on the philosophy, this question has been asked by many a time when I got, a call for invitation to inaugurate a Adani-led space company product. Okay, so we are very clear. Our government is focused. Whoever would like to partner with this state government, we would like to invite them, because ultimately we need employment for our people, we need investment for our state, and our chief minister and we are all categorical in saying that whoever comes to invest in our state and would like to partner with us, we will definitely welcome them. On the philosophical issue, on the ideology issue of the Congress over there, we will definitely be aligning with our party and see that, what is the interest of the state is more important. And we will also tell, if Adani or some other big businessman interests are there which are against our people, then we will try to fight against it. We are quite clear on this. Tomorrow also, we are quite clear, whoever comes and partner with us to provide employment for our people, we will partner with them. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपनी टीम के साथ बहुत जल्द भाजपा में शामिल होंगे। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में केटीआर ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हाल ही में अपने करीबी सहयोगियों के सामने ये बात रखी कि उनका राजनीतिक भविष्य भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा भाजपा में खत्म होगी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से वादा किया है कि वह अपने करियर को भगवा ध्वज के तले समाप्त करेंगे। केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इन गंभीर आरोपों पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने की मांग की है। हैदराबाद शहर के मध्य में स्थित प्रसिद्ध हुसैन सागर झील के जल स्तर में हाल ही भारी बारिश के बाद वृद्धि देखी गई है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के चलते झील का जल स्तर 513.41 फीट से बढ़कर 513.53 फीट तक पहुंच गया है। जीएसएमसी अधिकारियों ने इस वृद्धि की करीबी निगरानी शुरू कर दी है और अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करने के लिए एक गेट को 2 फीट ऊंचा कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को
वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी और हाशिए पर मौजूद लोगों को विकास की यात्रा में शामिल करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पैसे की कमी विकासशील देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गई है। वित्त मंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 4 ट्रिलियन तक की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और इस चुनौती का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। Fuel to renewable energy, but that money is yet to come. But India didn't wait. The promises given in Paris have all been fulfilled with our own monies. There are times when, being the finance minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this? Why can't we even be lower than this? I wish I can bring it down to almost nil. But India's challenges are severe and the challenges will have to be overcome. I seek very learned crowd before me, graduates, PhD holders, to understand India's challenges. I have taken the example of the renewable energy as one of those sustainable sources for energy for a growing country like India. And fossil fuel we'll have to move out of. But do we know how to transition from it? Except for saying, yes, we'll invest on solar, we'll invest in wind, we'll also have, and I'm grateful that Baba Atomic Research Center has come up with modular plans for setting up smaller nuclear energy centers for production of nuclear energy. So there are so many different activities which are happening in which India स्टार पहलवान विनेश फोगाट से शनिवार 17 अगस्त को पेरिस से भारत लौटी और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत करने पहुंचे। विनेश ने भारत लौटने के बाद उनके समर्थन में खड़े लोगों का धन्यवाद दिया और इस मौके पर भावुक भी हो गई। इस बीच विनेश के पति सोमवीर राठे ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1.5-2 साल से खेल फेडरेशन और अन्य समर्थन की कमी के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि खिलाड़ी के साथ कोई खड़ा नहीं है तो खिलाड़ी अकेले क्या कर सकता है। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। बस आप सबके आशीर्वाद और प्यार के बस एक वादा करके जाना चाहती हूँ मैं आप यहाँ से, आज आप सबके सामने यहाँ से, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, कभी आपका सर हम झुकने नहीं देंगे। उसका मान सम्मान हम अपने जी जान पे भी बड़े रखेंगे। और बस परमात्मा से यही दुआ है कि हमारा परिवार, हम सब स्वस्थ रहे और ऐसे ही हर बच्चा उनका रहे। आपका आशीर्वाद हमारी जिंदगी के लिए हमारी बहुत कीमती है। मतलब आप, मैं शब्द नहीं है मेरे इसमें, जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं पता नहीं भगवान ने इतनी खुशकिस्मत क्यों बनाई हूँ। मैं कल तक मैं कोस रही थी खुद को कि भगवान ने मेरे को बहुत बदकिस्मत बनाया है, पता नहीं क्या मेरे कर्म में है। लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे से ज्यादा खुद खुशकिस्मत मेरे ख्याल से कोई नहीं है आज के दिन, जितनी खुश मैं आज हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपसे वादा है कि हर अच्छाई की, हर लड़ाई में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बस आपके मान सम्मान को कभी आंच नहीं आने देंगे। बस ये एक वादा जरूर रहेगा। तरफ से पूरी कोशिश की विनेश ने और सभी ने कोशिश की, जितने भी साथ में थे। चलो नहीं हो पाया, मतलब सबकी किस्मत में मेडल नहीं होता। अपनी तरफ से उसने बेस्ट ट्राई किया और बस यही कहना चाहेंगे हम तो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हो 1.5-2 साल से जो चल रहा है, हमारे हाथ फेडरेशन नहीं है, हमारे हाथ कोई भी नहीं है। किसके लिए गेम करेंगे, मैं बताऊँ। हर जगह मतलब दुखी होना है और उसकी मतलब चलो उसके अंदर है गेम, मुझे पता है, मगर हो नहीं पाएगा। बहुत बहुत मुश्किल है। और हमने मतलब बहुत सोच समझ के, मतलब ये उस रात हम बहुत सोच समझ गए। ये नहीं था कि हमने भावना में बयान दिया था, हमने सोच समझ के बोला था कि हमने सब कुछ देख लिया था। कोई साथ नहीं खड़ा है। अगर एक खिलाड़ी के साथ कोई खड़ा ही नहीं है तो खिलाड़ी क्या कर पाएगा।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि हरियाणा और दिल्ली दोनों ही जगह कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भारत गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, जो अब अलग हो चुके हैं। आलोक शर्मा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी और इस बार दिल्ली में चौंकाने वाला परिणाम सामने आएगा। नहीं लेकर आती, लेकिन सैकड़ों करोड़ का बजट मीडिया के ऊपर खर्च करके और जिस तरह से दिल्ली के साथ पूरी तरह से ठगी की गई, ये 10 वर्षों में दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। आज एक महत्वपूर्ण विषय उसी कड़ी में लेकर हम आपके सामने बैठे। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि वो बिजली कंपनियों का जो डिस्कॉम्स का ऑडिट होना था, आज केजरीवाल जी बताएं वो ऑडिट कहां तक पहुंचा। ये तो कहते थे ना, लंबी लंबी लिस्टें लेकर बैठते थे, अजी साहब ये लिस्ट मेरे पास है, ये भी लिस्ट मेरे पास है, फलानी लिस्ट है, डिकड़ी लिस्ट है, इसमें उसका नाम है, इसमें उसका नाम है, ये भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी। आज हालत यह है कि सारा का सारा मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं तिहाड़ घूमकर आ गया है। 17-17 महीने तक जो व्यक्ति जेलों में रहे, वो व्यक्ति आकर पदयात्रा के नाम पर नौटंकी निकाले, नौटंकी करे, मालाएं पहने। तो एक नया रूप दिल्ली देख रही है कि दिल्ली को जिसने लूटा, वही लोग वापस दिल्ली के बीच में जाकर कहते हैं ये मेरा परिवार। यही केजरीवाल जी कहते थे ना, अजी साहब सब मिले हुए हैं जी, अजी सब मिले हुए हैं जी, ये तो सब मिले हुए हैं जी। अब दिल्ली की जनता को पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर, धोखाधड़ी करने के नाम पर जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों तक ठगा है दिल्ली को, उसकी असलियत के बारे में आज हम आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं और आने वाले समय में हम रेगुलर आप लोगों से बात करते रहेंगे। पिछला एक हफ्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वाटर लॉगिंग, सड़कें टूटी हुई रही, उसको पूरे इस मुद्दे को हमने देश की जनता तक पहुंचाया। कल देश की जनता को और दिल्ली की जनता को पता चला कि सीएजी की रिपोर्ट जितनी है, लगभग 11 के करीब रिपोर्ट है, जो 2022 से सरकार के पास है। सीएजी एक स्वायत्त संस्था है, उस संस्था के माध्यम से तमाम रिपोर्ट्स आती हैं और सरकार जो है वो वित्त मंत्री के माध्यम से एलजी की परमिशन के बाद, वित्त मंत्री के माध्यम से एलजी की परमिशन के बाद उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है और उससे पता चलता है कि भाई किसी भी राज्य की माली हालत कैसी है, उसका वित्त का स्वास्थ्य कैसा है, फाइनेंशियल उसकी मेडिकल जो हेल्थ है कंडीशन वो कैसी है, उसका पता चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराना सुरक्षा बलों की तैनाती की लिहाज से कठिन हो सकता है। इस वजह से फिलहाल सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में पूरे देश में चुनाव की बात की जाती है, लेकिन अब केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में तारीख अभी तक नहीं बताई गई है। आणि आज आघाडीच्या वतीनं उद्याची महाराष्ट्राची अशी दिशा काय राहणार आहे आणि जे काही महाराष्ट्रात संकट आहे त्या संकटातून महाराष्ट्राची सुटका कशी करता येईल या संबंधीची एक दिशा
महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्या शहरामध्ये याचे लाखो सरकारी आहेत त्यांच्यापर्यंत या आजच्या सोहळ्याच्या माध्यमातून पोहोचावी त्यासाठी आजचं हे आपल्या सगळ्यांचे संदेश आहे. अनेक सरकारी विषयांची वाटली झाली आणि प्रत्येकानं महाराष्ट्रामध्ये जर परिवर्तन करायचे त्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे याचं उत्तम मार्गदर्शन हे आपल्या सगळ्यांच्या सोबत केलं. फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार हे करण्याचे दिवस आता आहेत असं मला वाटत नाही. महाराष्ट्राचा विचार करावाच लागेल, पण अजूनही देशावरचं संकट पूर्णपणाने गेलं असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला एक भूमिका आपण मांडली संविधानाच्या संदर्भात. मी जबाबदारीने सांगतो की ज्या निवडणुकीमध्ये काही प्रमाणात यश आलं, पण याचा अर्थ संविधानावरचं जे संकट आहे ते पूर्णपणाने गेलं असा निष्कर्ष काढण्याचे दिवस नाही. आणि त्याचं प्रामुख्यानं कारण आज देशाची सूत्र ज्यांच्या हातामध्ये आहेत त्यांचा या सगळ्या संविधानात्मक संस्था, विचारधारा आणि तरतुदी यांच्या संबंधीची आस्था नाही. आज देशाच्या पार्लमेंटमध्ये आम्ही बघतो की देशाचे प्रधानमंत्री या पार्लमेंटची प्रतिष्ठा किती ठेवतात. राज्यसभेचे काही सदस्य या ठिकाणी व्यासपीठावर आहेत आणि ते सांगतील तुम्हाला. हल्ली राज्यसभेचं लोकसभेचं अधिवेशन झालं. या लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या अधिवेशनामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री एक दिवस सुद्धा सदनामध्ये आले. त्या सदनाची किंमत, त्याची प्रतिष्ठा, त्याचं महत्त्व, याच्याकडे जिंकून न बघण्याची भूमिका आजची राज्यकर्त्यांची आहे. आणि त्याची प्रचिती आम्ही जे लोक लोकसभे किंवा राज्यसभेमध्ये आहोत कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ शनिवार को पूरे भारत में डॉक्टरों और छात्रों ने राष्ट्रीय हड़ताल की। इस हड़ताल के कारण कई शहरों में अस्पताल की गैर आपातकालीन सेवाएं बंद हो गई। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार की मांग की और अपराधी को फांसी देने की भी मांग की है। हैदराबाद में मानव यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सवाल किया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। संगी सरकार नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। Coming here the next day and seeing you naked this way. The bleeding eyes,
broken thyroid bone, that is the collar, neck bone, black marks all over the body. The amount of semen collected from the body was that not a single person can ejaculate, even if he ejaculates 3 to 4 times simultaneously. It was a gang rape indeed. But the government is silent upon it. Apart from the private part and bruises on the face, the parents were called at 6 a.m. saying that she is sick. They called back them again and again, but they did not respond. And at once they took the call, and what they said was, she has committed suicide. They reached the hospital